This time I think I was more like prepared कि जो भी होगा, as I said कि I'm going to give my 100%. I remember when I came out from the examination hall, mains के last दिन, my father was there to pick me up. कार में बैठ के he said how did it go? I said कि इसके बाद आप मुझे और attempt देने मत बोलो, because इससे ज़्यादा मैं और prepare कर भी नहीं सकती. पहले तो बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है. I have this कि अगर we don't have that in our hands, then why bother about it? Right. But जो आपके हाथ में है, you can't skip it for what you don't have in your hands. He was shocked. बोलो at least say something, otherwise how will I know? I just called him and I cried. Then I said कि हो गया UPSC and I got 67 rank and I was like murmuring kind, मतलब he couldn't hear me properly. And say me loud कितने in Odia he said कितने rank आशी? I said 67. My mother knew by then. Call पे my father told her. We are very fond of mangoes, especially summer. तो दिन में हम 4-5 खा लेते हैं. तो बीच वाला जो होता है, it had the seed and all, उसमें थोड़ा pulp कम होता है. So my mother told me कि अभी तो मैं I can't serve you this. You have become this big officer and all. I have to give you proper mango juice या shake. Hello everyone and welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Ahana, your host today. Today I have a rank 67 in UPSC. Can you guess it? Her name is Kasturi Panda. Let's meet her and let's know about her journey, her struggles and how she dealt with the UPSC result, stress and all of it. Let's go. Hi Kasturi, welcome to Chamomile Tea with Toppers. Hi and thank you. I do want to mention that I have benefited a lot from such videos because I was preparing from home. So thank you to Unacademy and all other institutes out there as well जो videos upload करते हैं of strategies. By the way, हमें पता चला है कि you were very excited to come here also. I think it's equivalent to giving back also. I have like got a lot of inspiration and ideas and my whole strategy, my whole जो भी था, my plans, my schedules I have gained a lot from this because I was preparing from home, so I didn't have a particular mentor to whom I could reach out when I had difficulties. So I just open up YouTube and search the channel and कोई भी random एक UPSC वाला topper video I used to watch. And then again मैंने अपनी schedule flexible बना दी, थोड़ी सी change कर ली. It went with my UPSC flow. So tell us about yourself, like where are you from? How did you get into UPSC? आपने graduation में क्या किया है? Like everything. I am from Bhubaneswar, the state of Odisha, the eastern side of the country. UPSC preparation was in my mind. I think I had कि मुझे पता नहीं था तब कि what is IAS, collector कौन होता है, मतलब पता था as in I do knew कि but काम क्या करते हैं, how do you exactly prepare for this exam. I had a dream since the day I didn't understand what was this because my father is in the state civil service and his life has always like inspired me, motivated me. Whenever he used to like travel the field work and all, once in a while I also accompanied him. There's a memory of my childhood I would like to share. Once a transgender person, I had an opportunity to talk to her. So she said कि go back to your home and tell your dad that he is God for us. अच्छा. So I don't think I was of the age कि I'll understand the heaviness or the gravity of the things he said to me. But as I grew up and as I realized कि this field gives the kind of happiness, satisfaction, I think blessings. So I always wanted that. So I had a thing in my mind that I'll appear this and try for this. So, but actual decision of preparing came only after I graduated. I graduated from NIT Rourkela, Computer Science, batch of 2019. And there's a normal tendency we sit for placements या फिर masters का कुछ हुआ. But I had, मतलब since my parents also, like I talked to them and all, we discussed कि करना ही है तो why delay it? Why not just start?
So I came back home in 2019, and that's when my proper preparation of UPSC began. So when you told your parents that you want to, prepare for UPSC, what was their reaction? I think my father must be very happy. They never told me ki they are happy because I am preparing. But yeah, I am assuming that he must be happy ki I am at least trying something out which he has like done for like the major part of his life, and I think my mother as well. I'm just happy that now they are happy. I could make them proud for at least one of the reasons, despite being a quite spoiled child. Kaise? How you were a spoiled child? Spoiled in the sense मतलब I am the younger kid. Oh, I have got it. an elder brother. So एक बहुत ही protective environment होता है. मतलब ये कहाँ जा रही है, कब पहुँच रही है. My mother will call me up every time So I a go lot of outside. pampering was Yeah. given to you. क्या खाती है, क्या पीती है. You should eat healthy. You do this, you do that. Of the daily chores. नहीं, she will not do that. You go do it for him, her. ऐसे. So that kind of yeah. तो जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी तो आपकी मम्मी ने भी तब भी बहुत वैसे कि यू नो टेकिंग केयर ऑफ यू इन एवरी वे. Yeah, I remember the time. एक तो होती है मतलब I didn't know properly when I started. I decided कि I'll start preparing. तो एक ऐसा टेंडेंसी, I think there's a misnomer as well कि दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन हो सकती है. तो naturally I also had this inclination. I told my parents कि मुझे दिल्ली जाना है and I will prepare there. So they also accompanied me. We went for 1-2 days to explore कि what are the options available. And then it's not very comfortable. मतलब PG में जाना, you have to adjust to a new environment, do your own thing. एंड कोचिंग में जाओ विच इज लाइक क्लासेस सिर्फ 2-3 घंटे की होती है, बाकी टाइम तो इट्स सेल्फ स्टडी. सो यू आर क्लोजिंग योरसेल्फ इन अ रूम, देयर इज नो वन अराउंड हु यू कैन बी कंफर्टेबल विद. एंड आई वाज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन. आई वाज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट. आई टेक टाइम टू बी कंफर्टेबल विद पीपल. तो वहाँ तब आई थिंक माई पेरेंट्स वर नॉट इवन लाइक हैप्पी कि दे लीव मी देयर. एंड माई फादर वॉज ऑल्सो द पर्सन. ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली जाके ही होगा. दिल्ली में भी नहीं होता है, घर जाके भी हो सकता है. राइट. सो यू प्रिपेयर्ड. आपने अपना प्रिपरेशन अपने ही होम टाउन में ही करा. तो फिर सपोर्ट कैसा था सब चीजों का, अपने फ्रेंड्स का? the word infinite support था. Like whenever I had my own freedom कि जब पढ़ना है you can study, when you want to like have a little bit of break. I think I had the most important support system in the sense I had people to talk to whatever I want to and whenever I want to, especially my mother. तो she used to be at home. मतलब how मैं क्या खाती हूँ, my all the responsibilities she took. And I was never bothered about my daily जो भी है, कपड़े धोना, utensils साफ करना, वो सब, and cooking. तो I had this सब. I think ये सब भी बहुत मैटर करता है. If you're not taking care of yourself physically, तो mentally भी आप कैसे कुछ कर पाओगे. तो यूपीएससी जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपको रिसोर्सेस मिलना या मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया उसकी प्रिपरेशन? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द सिलेबस? हाउ डिड यू कम टू नो दैट which books to refer to? How you came to know? Yeah, मतलब वो तो I like mentioned in the beginning. I first my proper resource was Google and YouTube. Right. Yeah. So I searched. एक तो पहले I searched the name of the toppers 2015, 16, 17, 18 में कौन थे, 19 में कौन थे. I started giving my exam. My first attempt was in 2020. Okay. उसके पहले से whatever I spent around I remember 2-3 months to decide कि मुझे क्या optional लेना है. To decide which books are important for this, because abhi na we are of a generation there's information explosion. Right. There's no like problem कि आप कौन से financial background से आते हो या आपके पास कितने महंगे books हैं. अगर आपके पास इंटरनेट है तो it is very feasible. And वहाँ पे इतना सब कुछ है ना, you will like drown yourself in that vast ocean. मतलब necessity से बहुत ज़्यादा resources अभी freely available. Right. तो you also need that guidance कि मुझे कौन सा book नहीं पढ़ना है. So that's when these टॉपर स्ट्रैटेजीज हेल्प मी. बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोस. मतलब किसी का नाम लूँ तो 2017 के जो टॉपर थे अनुदीप सर, उनका ब्लॉग से ऑलमोस्ट मैंने जीएस का मतलब जो भी बुक्स थे मोस्टली लाइक 80% ऑफ द माई बुक लिस्ट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज ब्लॉग. देन कनिष्क सर का वीडियो, आंसर राइटिंग कैसे करना है. अनु कुमारी मैम सोशियोलॉजी की टॉपर थी, उनके ब्लॉग से मैंने सारे सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट कलेक्ट की.
And then over the period of time also my strategy was quite flexible. मेरी book list कभी add होते थे, कभी delete होते थे. That should be also based on how an aspirant is comfortable. आपको कौन सा material suit करता है. Okay, so you said that this is your second attempt, Yes. right? So let me just ask you about your first attempt. सबसे पहले first attempt में आपको क्या लगता है जो problematic था जिसकी वजह से आपका वो clear नहीं हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो होती है लाइक एज आई सेड यू आर लॉस्ट इन दिस ओशन. देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने कवर किए थे. मेरी रिविजन वाली स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं थी. एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ते बहुत हो, बट इफ इट्स नॉट गेटिंग रिटेन्ड इन योर ब्रेन, दिस इज नॉट एन ओपन बुक टेस्ट. Right. You have to memorize a lot of things and then you have to practice that. सब कुछ फ्लो में आना जरूरी है. When I was writing mains, you should be that fast कि सब सारा information आपके ब्रेन में हो and your just hand is like vomiting everything out. उतने स्पीड से भी हमको लिखना पड़ता है. If your revision is not up to the mark, then you will naturally be slow. Right. And I think there was this कि एक तो रिविजन ठीक से नहीं हुई थी and again मैंने वो मेंस वाली प्रिपरेशन थोड़ी सी डिले की थी to start only after prelims. I was like very scared because prelims is the stage where most of the aspirants are eliminated. Correct. Yeah. तो उसमें फिर I had less marks in sociology paper 2. GS का I could like मतलब end तक I could manage time and finish things. And it was okay मतलब above average and I was satisfied with the GS mark. But paper 2 में मुझे बहुत खराब marks आए थे. And then in the personality test also I didn't get very high marks. Right. I think those were the reasons for not being in the list. But overall मैं बोलूँ तो I think थोड़ी सी मतलब इधर उधर जो I said कि रिविजन ठीक से नहीं हुई थी. कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया. Like I got very high marks in GS2 and GS4. But GS1 and GS3 में कम हो गया. Okay. So yeah, it's about like balancing all the subjects together. ठीक है. So that was the learning that you got and Yes. वो आपके second attempt में Yes. काम आया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका इंटरव्यू था, आई थिंक आपने शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कोचिंग या कुछ ऐसे लिया था. Was it for first attempt or for the second attempt? कोचिंग नहीं मतलब मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं पर्सनल टेस्ट के लिए. आई थिंक बोथ द टाइम्स आई डिड कम. आई वेंट टू दिल्ली 2 times only. Okay. if I say. And मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे. तो मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्प भी कर रहे होंगे ना? यस, बट आई थिंक उसमें भी एक ऑप्टिमम लेवल आपका जज करना बहुत जरूरी है. जैसे कि पहले टाइम में इट वाज विद इन कोविड. मैंने दिल्ली में आके तो सिर्फ 2-3 ही दिए हैं ऑफलाइन, बट ऑनलाइन एंड वी गॉट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट शिफ्ट हुए थे बाय 3-4 months. तो मैंने अराउंड 12-15 मॉक इंटरव्यूज दे दिए होंगे. दिस ओवरडूइंग आल्सो किल्स यू. राइट. तो उसमें आपकी ना बहुत ज्यादा मतलब ट्रेन्ड आंसर्स निकलती है एंड मतलब बहुत स्क्रिप्टेड लगता Yes. है, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता. गॉट इट. So identify that balance for yourself. This time around I gave like 4-5 only. हाँ, तो I think and I got like significant improvement in my marks as well. So I think that works. ठीक है. सो हम अटेम्प्ट 2 की बात करते हैं, हम अप्रोच की बात करते हैं. आपकी प्रीलिम्स का अप्रोच मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी विथ योर प्रीवियस मिस्टेक्स इन योर माइंड. लाइक हाउ यू स्टार्टेड इट? डिड यू स्केड्यूल एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनाइज्ड वे में करा था या फिर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करे थे सेकेंड अटेम्प्ट में? प्रीलिम्स का आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड. जो मेरी पहली अटेम्प्ट में भी प्रिपरेशन थी, आई क्लियर्ड द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ. एंड दिस टाइम अराउंड तो मेरी प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी में ज्यादा चेंजेस नहीं थी. शॉर्ट में बताऊं तो इट इज कि पहले मैंने सारे बेसिक बुक्स कवर किए and then I used to focus on revising these basic books multiple times, not adding a lot of resources. And जो mock test होते हैं full length test particularly prelims के 100 questions all subjects, करेक्ट. उसको simulation environment में 2 घंटे में बैठ के करना है. And obviously without AC. Right. This is a good point because examination center में AC नहीं मिलती है. And you have to think very fast. 2 hours में आप अभी तो प्रीलिम्स की पेपर यूपीएससी हैज मेड इट वेरी लेंथी आल्सो. द क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत टाइम जाता है. तो यू कांट लाइक इवन वेस्ट टाइम टू वाइप आउट योर स्वेट. आई मीन इट साउंड्स वेरी फनी बट जो दे रहे हैं दे विल फाइंड द प्रैक्टिकलिटी बिहाइंड दिस. डिफिकल्टी हो रही है प्रीलिम्स वाली कि आप पेपर. टाइम वेस्ट मत करो कि पंखा And, चल रहा है नहीं चल yeah, रहा है, आप आंसर्स right. लिखने में वो हाँ, करो. तो 2 घंटे इट शुड बी जस्ट योर पेपर. करेक्ट. तो- योर होल फोकस शुड बी Yes. देयर. तो उसके लिए आई गेव इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव अराउंड 50-60 फुल लेंथ टेस्ट.
अब वो प्रैक्टिस आने के लिए टू आइडेंटिफाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई शुड अटेम्प्ट, माय मैजिक नंबर, जिससे आई विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड से 100 से ज्यादा, इससे होने से कट ऑफ क्लियर होता है एंड यू गेट सिलेक्टेड फॉर मेंस। तो दिस मतलब ये पूरा सिमुलेशन एनवायरनमेंट में मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मोर देन 90, मतलब 90 to 94 वाले रेंज में अगर मैं अटेम्प्ट करूं, एंड वी हैव नेगेटिव मार्किंग आल्सो, उतना होने से देन आई एम गेटिंग अबाउट 100। तो उसमें से भी आई वाज श्योर अबाउट लाइक मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चंस। बाकी आई थिंक एवरी एस्पिरेंट हैज टू लाइक डू अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग या थोड़ा एनालाइज करके फिर आंसर पे हम पहुंचते हैं। That is also a strategy, आप 60-70 क्वेश्चंस करो एंड प्रॉपर्ली करो एंड यू गेटिंग 110 120। तो मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा, Yes. मतलब आप पूरा नहीं कर सकते अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। आई थिंक देयर आर एस्पिरेंट्स जो अटेम्प्ट करते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि दैट स्ट्रेटेजी वर्क्स फॉर देम, तो आपको ना वो डिवाइस करनी पड़ेगी खुद के लिए, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आई फाउंड माय कंफर्ट, मतलब वो 100 वाला जोन इन 90 to 94 क्वेश्चन, जिससे मतलब मेरी ऐसी थी जो फुल लेंथ टेस्ट में आई रियलाइज 20-25 क्वेश्चन तो नेगेटिव होती ही होती है, एंड दैट्स आल्सो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप 60 क्वेश्चन गेस कर रहे हो तो अज्यूम करो कि 60% आप सही कर रहे हो एंड 40 क्वेश्चन विल गो रॉन्ग। तो दैट वाज माय लॉजिक इन प्रीलिम्स। तो इसमें इंग्लिश और सीसैट में आपको सबसे टफ कौन सा लगता है? या पेपर 2 वी हैव सीसैट, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स वाली क्वेश्चंस आती है। मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है एंड आई वाज क्वाइट गुड इन मैथ्स, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो आई फोकस मोर कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन मैं कर लूं, एंड वी हैव ओनली द इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर कि आप 67 मार्क्स लाओ। तो उसमें था कि इफ आई एम अटेम्प्टिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैथ्स में मेरे उतने हो जाते थे, एंड यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, एक्चुअली डज द ऑथर मीन दिस और डज द ऑथर मीन दैट। तो आई काइंड ऑफ दैट वाज नॉट माय कंफर्ट जोन, तो आई नेवर अटेम्प्टेड देम। कभी कभी ऐसे मतलब दिस अटेम्प्ट आई रिमेंबर लाइक अटेम्प्टिंग 2 ऑफ देम एंड 2 ऑफ देम वर रॉन्ग। तो आई विल से कि आई बेसिकली यू शुड मतलब आइडेंटिफाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वर्क ऑन देम। ठीक है, तो आपने इंग्लिश की जो प्रिपरेशन करी, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज एज यू सेड फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स में मेंस का कोई वो नहीं रखा था, तो आई एम होपिंग कि आपने सेकंड में डेफिनेटली मेंस एड ऑन करोगे व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग विद द प्रीलिम्स। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या कौन से न्यूज़पेपर्स या फिर क्या आपके रिसोर्सेज थे उसमें? इंग्लिश गेट्स बेटर विद टाइम। एक तो अन अकेडमी में ही आई टुक द इकोनॉमी कोर्स बाय मृणाल सर, तो उनकी एक रिकमेंडेशन थी आप एक तो न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ो। आई हैड दिस हैबिट, बट मैंने नोट्स नहीं बनाए थे वहां से, बट आई यूज्ड टू रीड देम फॉर 30 to 45 मिनट्स। एडिटोरियल का आप अगर पूरा भी कवर नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट read the intro वाला पारा and the conclusion वाला पारा, so you will get this ornamental English language जो आप लिख सकते हो, you know, governance या how do you not sound political, right. How do you sound balanced, how is it कि what is expected from an administrator, जब वो लोग editorials लिखते हैं तो आप वो धीरे धीरे it will come to you, and one resource which helped me class 11 की NCERT economy, वो वाली आप पढ़ोगे, then economic survey जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है उसके भी आप द प्रीफेस एंड द इंट्रोडक्शन आप पढ़ो, देन यू विल रियलाइज हाउ टू, जैसे इंट्रोडक्शन में ही दे यूज्ड टू सम अप द होल चैप्टर, राइट। आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को मतलब उसको क्रिस्पली कैसे लिखते हो, विच इज द होल थिंग अबाउट मेंस। आपको बहुत कुछ लिखना होता है बट यू जस्ट हैव 2-3 पेजेस, उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है। दिस स्टाइल ऑफ मतलब इंग्लिश के अंदर भी एक लैंग्वेज जो है अबाउट शॉर्टनिंग इट एंड क्रिस्प करके भी आप जो बोलना चाहते हो या कन्वेइंग इट टू द एग्जामिनर, ये सब विल लर्न फ्रॉम दैट। तो जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, एनीथिंग दैट केम इनटू योर माइंड व्हिच वाज अ लिटिल डीमोटिवेटिंग थॉट कि कैसे होगा, बिकॉज दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो ऐसा कुछ थॉट आया था आपका? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद मतलब ये साइकिल तो ऐसी है कि आपको फिर से पूरा प्रीलिम्स एंट्री करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए मे बी आई वाज नॉट दैट स्कैर्ड, बट वो सिर्फ 2 महीने की सेपरेट प्रिपरेशन होती है। व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज क्वाइट, आप बोलोगे तो इट्स लाइक आई वाज हार्ट ब्रोकन एंड आई डिडंट वांट टू अपीयर दिस अगेन, आई नेवर वांटेड टू गो बैक टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन आई हैड दिस स्ट्रॉन्ग लाइक बैकग्राउंड, मतलब जो एक तो व्हेन यू गोइंग टू मतलब NIT हो गया, IIT हो गया, तो यू हैव दिस अलुमनाई नेटवर्क, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है
यू कैन गो बैक टू द कॉर्पोरेट या आप मास्टर्स के लिए कुछ कर लो. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, लाइक फाइंडिंग माई बैकअप. बीच में मैंने वो अपने स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स भी दे दिया था. एंड डिफिकल्टी वही है, प्रीलिम्स में नहीं थी, बट आई नेवर वांटेड टू लाइक कम बैक टू दिस एग्जाम. टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मतलब एक्सप्लेन माई सेल्फ कि इतना तक किया है. मतलब इफ आई हैव रीच्ड द इंटरव्यू नाउ देन एफर्ट तो आई वुड हैव गिवन. एंड इफ आई एम गिविंग अप एट दिस जंक्चर then I am giving up on the effort and hard work I had invested in. तो वो वाली मेरी मेहनत बेकार ना जाए, तो एक और बार I deserve myself, I need to give myself another try. तो then again I came back to giving my second attempt. So जब प्रीलिम्स के एग्जाम रिजल्ट्स आ गए थे तब आपका क्या फोकस था उसके बाद? मतलब मेंस तो था ही, लेकिन मेंस क्लियर कैसे करना है उसका क्या स्ट्रैटेजी था आपका? मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के प्रीलिम्स के बीच में जो मुझे टाइम मिला, आई फोकस्ड ऑन कि मतलब जो मेरी वीकनेसेस थी, आई रियलाइज्ड कि सोशियोलॉजी पेपर 2 में देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय प्रिपरेशन. अदरवाइज आई शुडंट हैव गॉट लाइक सो लो मार्क्स. राइट. तो एवरेज तो आ ही जाते. तो दैट टाइम अराउंड आई स्टार्टेड मेकिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. मतलब एक तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में प्रॉब्लम ये है, इट्स मतलब यू वोंट गेट ऑल द रिसोर्सेज इन वन प्लेस. कोई एक फैकल्टी के नोट से या कोई एक बुक से आपको सब कुछ कवर होकर नहीं मिलेगा. हाँ, टॉपिक. एंड इट्स मतलब एक तो कॉम्पिटिटिव बहुत हो रहा है सब्जेक्ट. यस, द सिलेबस इज लेस, इट कैन बी कवर्ड इन 4-5 months, बट यूपीएससी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी कि वो हर ऑप्शनल से तो मतलब बच्चे आते हैं. तो अगर सोशियोलॉजी से लाइक 10 times मोर बच्चे दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि 10 times मोर पीपल विल गेट सिलेक्टेड. तो इफ यू आर इनटू दोज लाइक टॉप जो भी 5 या 10 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. बिकॉज़ मेनी पीपल आर चूजिंग सोशियोलॉजी, so that means the competition is also increasing. राइट. मतलब तो जरूरी नहीं अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो किसी और के 90 मार्क्स नहीं आएंगे. There are 10 more people who will be getting the same marks. तो आप जो बोल रहे हो 90 मार्क्स एक्चुअली हर किसी के आएंगे. हाँ, getting 91, 92 is actually the difficult thing. तो उसके लिए you have to put in a lot of effort to get that 1 or 2 marks extra. तो वो वाली चीज मैंने ये गैप में कवर की थी. Made my notes very comprehensive. Then I had thought कि prelims के तुरंत बाद ही I will not waste more time in more books or more content. मेरे already इतने ज्यादा हैं, तो I will get into the revision mode. जो मैंने बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती हुई थी. I was just reading lot many books, lot many resources, adding to my notes, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया था अच्छे से. दिस 3 months जो हमको मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट आने के बाद मेंस तक, एंड रिजल्ट आने तक भी मेरी एडवाइस रहेगी आप वेट मत कीजिए. ऑफन द कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट के जो सोल्यूशंस आ जाते हैं, यू गेट अ लाइक अ स्कोर, आप +-10 करके एज्यूम कर सकते हैं इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट. तो आई वाज इन द सेफ जोन. इवन आई एम लाइक -10 भी हो जाता है उस सोल्यूशन से, तो आई वाज श्योर कि मैं क्लियर तो कर रही हूँ. So I did take a break of about 1 week, rejuvenate myself. I went on a trip with my friends. उसके बाद वापस आके I started revising my notes. और जो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे, जो किया था, I started revising. एंड फिर मैंने अपने मतलब वो मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर दिया था. फुल लेंथ टेस्ट अगेन फॉर जीएस, एसए और सोशियोलॉजी के लिए. तो दिस टाइम अराउंड इट वाज मोर लाइक वेरी बैलेंस्ड, शेड्यूल्ड, एंड ये टाइम पे ये कवर होगा, ये हो जाना चाहिए. एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड एक्स्ट्रा बुक्स. वो अपने अंदर जो एक अर्ज होती है कि नहीं मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ. आई काइंड ऑफ कंट्रोल्ड माई सेल्फ दिस टाइम अराउंड कि जितना पढ़ रहे हो उतना यू हैव टू कन्वे द एग्जामिनर कि मैंने इतना तो पढ़ा है. अदरवाइज इफ यू आर जस्ट चेजिंग न्यू बुक्स, वो पुराने बुक्स का भी आप कुछ लिख नहीं पा रहे हो, then you are wasting your own hard work. You are feeding too much into your mind also, जो थोड़ा आपको confuse भी कर देता है. Right. ठीक है. So अब हम let's go through each subject of mains. ठीक है. So आपने English and आपका जो language भी था वो हिंदी था, right? And बाकी CS जो भी 1, 2, 3 जो subjects थे. तो आप बताइए, आपने सबसे पहले तो टाइम टेबल कैसे बनाया था अपना मेंस के लिए? लाइक हाउ मच टाइम यू डेडिकेटेड टू ईच सब्जेक्ट एंड विच सब्जेक्ट यू गेव द मोर टाइम टू? टाइम विल बी फ्लेक्सिबल. वो हर दिन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है. जैसे कि अगर प्रीलिम्स के बाद वाले जस्ट 1 महीने की बात बताऊं,
तो इनिशियली थोड़ी सी स्लो पेस प्रिपरेशन शुरू होती है. आई यूज टू डिवोट माई टाइम सिंस ऑप्शनल में मेरी थोड़ी सी वीकनेस थी. आई हैड मतलब आई वाज स्कैर्ड फ्रॉम माय प्रीवियस वन कि इसमें फिर से मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा. राइट. तो आई काइंड ऑफ गिव मोर टाइम, मतलब 60% ऑफ माई टाइम टू सोशियोलॉजी एंड 40% ऑफ माई टाइम टू जीएस. अगर आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हो मेंस में, यू विल हैव टू डिवोट अ लिटिल मोर टाइम, से 8 to 10 hours a day. बट अगर आपकी नेक्स्ट वाली अटेम्प्ट है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, आपको सिर्फ रिविजन करनी होती है. तो आई कुड मैनेज इट लाइक 6 to 8 hours a day. एंड वो इनिशियली कम रहेगी, देन इट्स लाइक अ साइन कर्व. देन जब प्रीलिम्स की रिजल्ट आती है, then you get that adrenaline rush, then you'll sit for 10-12 hours. Right. But ये चीज भी आप prolonged period के लिए नहीं कर पाओगे. Exhaust It will go down. Yeah. Then exam के just 15 days पहले, again this time will go up to 12 to 15 hours. Right. Because तब उसमें एक nervousness आ जाती है कि सब कुछ revise करना है, I should remember everything, मैं कुछ भूल ना जाऊँ. वो सब होती है. And then GS की अगर मैं subjects की बात करूँ, I used all the basic resources. जैसे हिस्ट्री के लिए NCERT से मैंने एंशिएंट एंड medieval की इतनी प्रायोरिटी नहीं होती है मेंस में. इट्स मोस्टली आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लिया था, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है. इकोनॉमी के लिए आई यूज्ड मृणाल सर की होल कंपाइल्ड नोट्स. देन सोसाइटी वाली मेरी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ ही कवर हो गई थी. ज्योग्राफी के लिए आई यूज द एनसीईआरटीज एंड यूट्यूब में फ्री में आपको वीडियोज भी मिलेगी एंड पीपीटीज भी मिलेगी ऑफ राजतनल मैम. ज्योग्राफी के लिए वो यूज किया था. पॉलिटी एवरीवन नोज इट्स लक्ष्मीकांत. एंड बाकी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हुए, IR, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, ये सब के लिए आई यूज द कंपाइलेशन आती है मेंस के पहले फॉर द करंट अफेयर्स. उससे आप थोड़ा थोड़ा अपना कंटेंट एनरिच करो. एंड वन थिंग आई डिड अबाउट राइटिंग फास्ट इन मेंस इज आई हैड टेम्पलेट्स रेडी. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में हम सारा लिखते हैं, ऑल द क्वेश्चन. आप अगर टोटल ऐड करोगे तो जीएस में इट्स लाइक अराउंड 79 क्वेश्चन. जीएस 1, 2, 3, 4. उसमें आई हैड सम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन टेम्पलेट रेडी. आप थीम्स रिकॉग्नाइज कर सकते हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि यूपीएससी विल आस्क बेस्ड ऑन, मतलब कुछ ये क्वेश्चन रिलेटेड ही आएगा from this particular topic. और आपको एक पैटर्न भी पता लगने लग जाता है. तो अगर I am identifying that theme in the examination hall कि ये क्वेश्चन की ये थीम है, तो I can write that ready-made introduction और conclusion. मतलब अगर आपको वो इनोवेशन करने की और टाइम नहीं मिल रही है, in first few questions we do write some new stuff in the paper, but जब when you run out of time, I had this templates ready. जैसे SDG के goals हो गए, तो ये आप किसी भी conclusion में लिख सकते हो. And suppose there are some speeches from Honorable Prime Minister Sir की, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, सबका साथ सबका विकास. These are like very popular lines. ये सब भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. These are applicable to all the questions in GS. So I had done this even for ethics. Ethics is a very lengthy paper. उसके लिए भी आई हैड सम टेम्पलेट्स रेडी. जैसे अगर इंटीग्रिटी आ गया तो उसमें आप 4 कीवर्ड्स नोट कर लो एंड व्हाटएवर यू राइट एंश्योर कि ये 4 कीवर्ड्स हो and highlight them. I used to highlight them, not just underlining, I used to box them. Keywords you used to get from the question itself. क्वेश्चन से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे ऑफ विच यू हैव टू मतलब एड्रेस इन योर आंसर. राइट. ये जो कीवर्ड्स आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, यू हैव टू कलेक्ट इन योर फेज ऑफ प्रिपरेशन. जैसे कि अगर एग्जांपल मैं इंटीग्रिटी की बोल रही थी, आई हैड सम ये कि जैसे 4 कीवर्ड्स हो गया. अगर इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आया तो कैसे होता है, हाउ डू यू डेवलप इंटीग्रिटी इन अ पर्सन. सपोज द क्वेश्चंस डिमांड इज दिस, यू कैन राइट क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड एक हो गया सोशल पर्सुएशन. दीज आर एथिकल वर्ड्स. आप नॉर्मल इंग्लिश में इन वर्ड्स के और भी सिंपल मीनिंग्स निकाल सकते हो, बट मैं बोलती हूँ कि हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है. करेक्ट. दैट इज वेरी टर्मिनोलॉजी होती है. दैट इज अब आप जब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आंसर करते हो, इफ यू राइट जनरल इंग्लिश, तो वो हर सब्जेक्ट की आंसर सेम ही लगेगी. हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम अ हिस्ट्री क्वेश्चन एंड अ सोशियोलॉजी क्वेश्चन. उसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज आपकी जरूर होनी चाहिए आंसर में. एंड वो टर्म्स जब आप लिख रहे हो, हाईलाइट देम, मतलब कन्वे टू द एग्जामिनर कि ये मैंने सोशियोलॉजी का आंसर लिखा है. ऐसे सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने कलेक्ट किए थे. जैसे अगर आप कोई थिंकर्स कवर कर रहे हो, इफ देयर इज कार्ल मार्क्स, एलिनेशन होना चाहिए आपके आंसर में, मोड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए आपके आंसर में, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टलिज्म, ये सब क्या है यू कैन डिफाइन इन लाइक 3-4 वर्ड्स. एंड क्रिस्प लिखना सीखिए, in as many less words as possible, point wise answers लिखिए so that it becomes faster.
तो मुझे ये बताइए कि जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, ये इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा डिफिकल्ट लगता था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, इसके अपार्ट कौन सा ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था ये नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से? आई थिंक आई फाउंड ज्योग्राफी मोस्ट डिफिकल्ट। सो आपको सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों को मैं साइड में रखती हूँ। इसके अलावा जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एथिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा बहुत डिफिकल्ट लगता था? डिफिकल्टी आई से ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा थी, एंड इवन थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ मगिंग अप थिंग्स। मतलब कोई डेट हो गया, मैं 1970 को आई विल गो एंड राइट 1960। तो ये वाला चीज आई आइडेंटिफाइड इन माय टेस्ट सीरीज आल्सो। आई एम वेरी बैड विद डेट्स, या कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, ज्योग्राफी में ये सब याद रखना पड़ता है, मैप वर्क, these I found very difficult. तो how did you work that out? मैंने बोला था when I used to make these templates, I also made A4 sheets history के लिए, कि जो भी important dates I want, कि जो थोड़े common dates होते हैं, मतलब मेंस में क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको पर्टिकुलरली ऐसे नहीं आएगा कि ये बैटल कब when it was fought. तो सपोज क्वेश्चन आया कि कोई आर्किटेक्चर पे है, इट्स ऑन सम डायनेस्टी, सम किंग, तो आप कुछ जेनेरिक डेट्स याद रखो जैसे, एंड मतलब अभी तो मैं फिर से रिकॉल करके नहीं बोल पाऊंगी, बट कुछ डेट्स आई जस्ट रोट देम इन एन A4 sheet 10 to 15, and I used to, while I go to sleep, I used to revise them every day. That will take like 5 minutes. एक पेज रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने ये किया था, जो पूरी बड़ी मैप होती है, इंडिया मैप एंड वर्ल्ड मैप, I pasted that in front of my study table. तो जब भी whenever you sit to study, just see that जब भी मैंने कोई आंसर गलत किया हो किसी टेस्ट सीरीज में, या फिर आई फाउंड देम इन द न्यूज की लोकेशन इन न्यूज अक्सर पूछते हैं प्रीलिम्स में, तो उसको आई यूज्ड टू इन अ पेंसिल और अ पेन, कोई हाइलाइटर, तो वो मैप में ही आई यूज्ड टू राइट। आई हैव शेयर्ड माय मैप आल्सो इन माय टेलीग्राम चैनल, आप देखोगे इट्स अ वेरी डर्टी मैप। तो मतलब ये लॉजिक ये थी कि इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ माय आईज एवरी टाइम। तो whenever you are sitting and studying, कभी ऐसे मतलब आप ऐसे स्ट्रेच करो या कुछ करो, तो सी एट द मैप कि ये लोकेशन यहाँ पे है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 साल हो गया, देन यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स। 1-2 साल? आपको 1-2 साल लगे वो चीज याद करने में? I take a lot of time to like, but that is really nice, because constant effort करने से ही वो चीज होगी, जब आपको पता है कि that subject is going to be very difficult and मतलब मेरे एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, तो आप उसमें क्रिएटिव तरीके लेके आते हो, राइट, ताकि आप उसको पढ़ सको। दैट इज अ वेरी नाइस अप्रोच टुवर्ड्स दैट। सो लेट मी टॉक अबाउट द एग्जाम हियर। सो मेंस का जो एग्जाम है, कितना नर्व रेकिंग था आपके लिए? आई थिंक नर्व रेकिंग ज्यादा तो प्रीलिम्स होता है, इट्स मेंटली वेरी स्ट्रेसिंग, बट मेंस में आपकी फिजिकल एंड्योरेंस चेक होती है। यू राइट 50 pages a day, 8,000 words a day, and 6 hours with just a break of 2 hours, जो भी एक तो 1 घंटे चली जाएगी आपको थोड़ा सा कहीं जाके खा के आने के लिए, तो आई वोंट कंसिडर दैट एज अ ब्रेक एट ऑल। तो उसमें वो तो फर्स्ट जब मैंने दिया था, एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड आई एम गोइंग टू राइट, एंड बहुत लोग इंस्पायर कर लेते हैं कि आप सिर्फ द टॉप 10,000 पीपल हु आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू राइट मींस। तो आई वाज दिस कि पहले अटेम्प्ट में मेरी दिमाग में ये थी ना कि दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ तपस्या, एंड इफ आई एम लाइक being harsh on myself, God will be kind on me and he will give me some blessings. This is a very mature approach which I say. तो पहले मेंस में GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूसली था, एंड आई हैड दिस कि मुझे एकदम से मतलब लेजी फील नहीं करना है, ड्राउजी फील नहीं करना है। प्रॉब्लम आती है विद द सेकंड पेपर, योर हैंड इज ऑलरेडी पेनिंग, एंड राइट आर्म तो एकदम स्टिफ हो जाती है, लाइक दोज आर रोट मीन्स दे नो। तो उसमें पेपर 1 मैंने लिखा, पेपर 1 में इतना सब कुछ होता है, उसमें मैंने फेस किया जब रिवाइज नहीं हुआ था। अगर ऐसे पेपर 1 में ही हिस्ट्री, पेपर 1 में ही ज्योग्राफी होती है, एंड सोशल इश्यूज इन, तो व्हेन एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस कम मतलब पहले, उसके बाद सोशल इश्यूज आती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए थे इन 2020 अटेम्प्ट। देन आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड, नर्वस हो गई थी एग्जाम हॉल में, एंड हाउ डू आई राइट ऑल दीज डेट्स एंड ऑल। तो बहुत सारे सिमिलर आंसर्स लिखना शुरू हो गया, लाइक 2, 3, 4 क्वेश्चंस आई हैड सिमिलर कंटेंट ओनली,
I forgot everything that because मेरी revision उतनी proper नहीं थी, याद नहीं आ रही. Even I think I damaged the social issues part also, which I thought would have been my strength. ये सब हुआ. Then in my GS paper 2, बीच में जो break मिला, I didn't eat properly कि I don't want to feel lazy and I want to do that, like give my best in that paper. वो था because GS1 इतनी अच्छी नहीं गई थी. And when I started writing, I got a very bad headache. उसके बाद फिर भी आई लाइक रोट एवरीथिंग एंड फिर आपको वो होती है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस हेडेक एंड आई जस्ट हैव टू राइट बिकॉज आई विल नॉट गेट दिस 3 hours अगेन. अदरवाइज पूरी एक साल फिर से जाएगी इन गिविंग अनदर अटेम्प्ट. सो आई कांट लाइक गिव अप नाउ. I wrote everything and I don't remembering submitting my answer paper to the examiner. By the time I ended up writing, I was completely like blacked out. And इतना ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया था मतलब headache and all. फिर then I couldn't when I went back home उस दिन also I couldn't revise my notes for the GS3 and GS4. But again ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब आपको फिर भी पता नहीं चलेगा आप कौन से पेपर में अच्छा करोगे कौन से में खराब करोगे. I had assumed कि मुझे GS2 में कम मार्क्स आएंगे and GS3 में ज़्यादा आएंगे. Because GS3 I had better preparation and I was more refreshed. That was a morning paper. But जब marks आया got in fact more marks in GS2 and less marks in GS3. Okay. तो मेंस एक्चुअली आप फिर प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कि आप कौन सा अच्छा कर रहे हो कौन सा खराब कर रहे हो. इट्स क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड इतना सब कुछ लिखना होता है इतना सब कुछ होता है ना. अगर आप उतना रिविजन एंड उतना प्रैक्टिस के साथ नहीं जा रहे हो you will forget everything. But GS4 came as my savior. I scored around one of the highest in GS4 ethics paper in my first attempt and which I had carried on in this. उसमें ज़्यादा मुझे और effort नहीं देना पड़ा. And this time around in my next attempt GS के लिए I was more balanced, I was more focused. I had these notes prepared कि ये सारे keywords जानने चाहिए. I had segregated the themes. Question को separate करना सीखा. Otherwise the content will get repeated. Themes के साथ segregate हो गया. इस theme के लिए I have this kind of content. I have these keywords. I have these examples. And then you start writing the back of your mind. So I think that came with practice and experience. I have heard a lot of students putting too much pressure on themselves when they are giving mains. Yes. अपने आप को बहुत स्ट्रेस आउट कर देते हैं, फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं एग्जाम में. जैसे आपने अपना भी एग्जाम्पल दिया, आपने खाया नहीं, यू वेंट आउट देयर, यू डोंट इवन रिमेंबर दैट यू सबमिटेड द एग्जाम शीट. सो डिड दैट चेंज फॉर अटेम्प्ट 2? Yes, मतलब पूरा ही चेंज हो गया था. As I said previous attempt में मैंने बोला ना I was very harsh on myself. Prelims के बाद एक दिन भी मैंने मतलब खुद को ब्रेक नहीं दिया था. I was continuously preparing and my friends were like तू बात नहीं करती है and all. How do you manage this? एक दिन का तो कुछ रेस्ट करना चाहिए. And prelims is like the मतलब उसमें आपको इतना सब कुछ पढ़ के जाना होता है, सब कुछ रिमेम्बर करो. Then see कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ठीक हो रही है, गलत हो रही है, इतना सब कुछ आप कर रहे हो. उसके बाद जस्ट द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो दैट इज लाइक बीइंग मतलब प्रेशराइजिंग, ओवर प्रेशराइजिंग योरसेल्फ. फिर मेंस में मैंने बताया व्हाट ऑल दिस मिस्टेक्स आई डिड. तो दिस टाइम अराउंड मेरी पूरा प्रॉपर ये थी कि आई एम नॉट गोइंग टू डिवोट माई लाइफ टू यूपीएससी. There is life beyond UPSC and UPSC is just an exam. I had explained myself this time. And वो ethics में भी हमने पढ़े थे. I can say कि I was more of the निष्काम कर्म approach. कि मुझे वो प्रिपेयर करना है जो मुझे एग्जाम में लिखना है. The examiner is not going to know कि मैंने कब पार्टी की थी, मैंने कब अपनी चीट डे की थी, if I went on a trip or not. और if like I am drinking water, if I am drinking milk, जो भी है ये सब चीज़ें आप these are all trivial stuff. इसको आप इतना फोकस मत कीजिए. आपको वो करना है, मतलब मेरे को पढ़ना है, I have to remember things and I have to write in the exam. That is the only thing based on which the examiner will give you marks. And marks होते हैं जिससे आपकी रैंक आती है, जिसमें आप सक्सेसफुल होते हो या फेलियर होते हो. जो बैकग्राउंड वाली चीजें होती हैं दैट्स कॉल्ड लाइफ. दैट्स मोर अबाउट बैलेंस. दैट्स अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड. एकदम यूपीएससी में घुस के नहीं रहना है. एंड आई विल से कि दिस अटेम्प्ट अराउंड जो मैंने आई विल से दिस एज लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी. जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, लीजर एंड एंटरटेनमेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में टू पुट योर ब्रेन इन अ पर्टिकुलर प्लेस. राइट. हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है. यू कांट, there's a time of like 6 to 8 hours when you need to sleep.
You can't function 24 hours a day continuously without eating, without sleeping. That should not be the approach to this exam. Explore life, spend time with your friends. आपको आज पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, I used to give that day, मतलब राइट दैट इन योर शेड्यूल, दिस इज गोइंग टू बी माय चीट डे. तो उससे नेक्स्ट डे फिर अपने आप, अगर आपको अपना ड्रीम पे फोकस है ना, तो वी डू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, हम शिफ्ट करते हैं टू द नेक्स्ट डे, बट व्हेन एग्जाम गेट्स नियर फिर वो अपने आप वो एनर्जी आ जाती है. आप 12-14 घंटा बैठ के सब कवर कर लो. एक स्ट्रेस आ जाता है जो आपको किक करता है कि आप कंटिन्यू करो. आपने वैसे ट्रिप की बात बोली तो आई थिंक आवर ऑडियंस वुड लाइक टू नो आपने कितनी ट्रिप करी है जब आपका मेंस एग्जाम हो रहा था. फर्स्ट अटेम्प्ट में LC 0 बिल्कुल नहीं था, एंड देयर वाज कोविड आल्सो, तो वैसे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली थी. आई वाज स्ट्रेसिंग आउट माई सेल्फ, जस्ट a lot was happening in the world as well. वो भी एक बहुत difficult time थी to process everything. And I'm putting only thinking कि UPSC नहीं होगा, I don't deserve this, I don't want this. एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी क्लियर हो जाएगी. Even this, I think I didn't think about this in the second attempt also. बट इसमें मैंने ये सोचा था कि मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि मेरा नहीं होगा. मतलब दिस टाइम यू वर लेसर, मतलब आप कम अपने ऊपर हार्श थे. यू वर लेस हार्श ऑन योरसेल्फ. तो रिजल्ट आने के बाद व्हेन द फर्स्ट अटेम्प्ट गॉट ओवर, फिर मैंने मतलब दिस इज माय हॉबी, आई लव ट्रैवलिंग. तो मैंने खुद को एक ट्रिप दिया. फिर 2 months बिफोर प्रीलिम्स, हम जब पूरा एकदम प्रीलिम्स मोड में चले जाते हैं, उसके पहले मैंने डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू सिट एंड फिनिश माय प्रीलिम्स वाला स्टफ. उसके पहले मैंने अपने आप को एक ट्रिप दिया. देन जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, जैसे पिछली बार मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं दिया था खुद को, दिस टाइम आई गिव अराउंड फुल प्रॉपर 7-8 days ब्रेक. उसमें आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स. उसके बाद ये भी फिर जब मेरा मेंस खत्म हुआ, then immediately my state PCs का result declare हो गया था. Just after 2-3 days my mains got over. So I gave myself a celebration trip. आप खुद को award करते रहो. It's very important to prioritize your mental health. And you have to balance both of the things also. Right. अब इससे एक और चीज़ याद आई. मुझे पता चला है कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला था, you did something. Like if this comes out and मतलब if my parents ever watch this, no, my mother is going to give me a tight slap. वो क्या हुआ था ना, पहले टर्म में जब रिजल्ट आया था, तो आई वाज मतलब आई एक्सेप्ट कि आई वाज नॉट मैच्योर्ड इनफ. तो and I'm still struggling कि how do you accept failures, how do you accept people who take pity on you, who say nasty things about you. There will, मतलब ऐसे पूरा इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, पूरा वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि हर इंसान आपको प्यार करेगा. तो there will be people who will say this, say that. Often कुछ लोग बोलते हैं कि आप किसी को बताना मत कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो. But in my case it was like it was never a secret. क्योंकि मैंने बोला था ना ये बचपन का है, तो बचपन में भी अक्सर लाइक इनोसेंटली ऐसे कि हाँ मुझे UPSC करना है, मुझे IAS बनना है, तो एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू कि दिस पर्सन इफ शी हैज नॉट टेकन अप अ जॉब और शी हैज नॉट गॉन अब्रॉड, देन ये यही करेगी. एंड द थिंग इज यू अचीव्ड इट. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट यू अचीव्ड इट. या आई एम लाइक आई स्टिल कांट बिलीव आई यूज्ड टू सिट एंड थिंक कि ये होगा नहीं होगा. या कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उसमें जब फिर फर्स्ट टाइम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आई वाज वेरी ओवर like expecting from myself कि इस बार तो रैंक आ जाएगी, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी. तो जब नहीं आया, I was तब I remember I went for a walk, मतलब मेरी balcony में only, मतलब with my pet, घर के अंदर. तो I was just strolling around, फिर रिजल्ट आया, मैंने देखा my name is not in the list. I went back, I logged myself in the room, मैंने पेट को वहाँ पे ही छोड़ दिया था. And I logged myself in the room. And फिर तब exactly my parents didn't knew कि result आ चुका है. My mother and my father knew about 15-20 minutes later. तो मैंने I was continuously crying for I remember like 3-4 hours. 1 घंटे मैंने पूरा अपने आप को रूम में बंद कर दिया था. My mother was knocking the door. Even my pet, he was very upset कि उसको छोड़ के आ गई. And then मतलब I was crying loudly. Even he was scared and all. तो I think कि इस बार इस डर से ज्यादा कि मेरा होगा या नहीं, माय पेरेंट्स वर स्कैर्ड कि इसको संभाले कैसे अगर नहीं हुआ. तो आई डोंट हैव अ लॉक इन माय रूम एनीमोर आफ्टर दैट इंसिडेंट. बट फिर भी दिस फेजेस कम बैक. आई वांट टू स्टे अलोन. आई डोंट वांट पीपल टू टेक पिटी ऑन मी इफ आई फेल. एंड यूपीएससी में ये होती है कि 90% आपकी ये होती है कि आई फेल एंड 10% होती है कि आई मे गो थ्रू. फीलिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. यस. तो इस बार मैंने क्या किया, एक दिन पहले पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है.
एंड दैट मॉर्निंग वी गॉट टू न्यू कि 1-2 PM के बीच में रिजल्ट आएगा, विच एक्चुअली केम ट्रू. बीच में आई वेंट, मतलब पहले मैंने एक मूवी देखने गई थी, नाइनॉक्स आई रिमेम्बर. तो वहाँ पे ब्रेक में दे सेड कि आप अगर ₹1 दोगे तो you can sit in the hall and see for advertisements for 30 minutes. I mean, who does that? You. मतलब कोई क्यों ही जाएगा? I assume कि वो हॉल तो खाली होगी. तो this will be my proper seclusion place. I went. उस दिन 1 बजे I reached. I told, मतलब मैं I'm already in the state PCS. I told कि I'm going for जो training में I'm going to office to meet my senior. And I went there. वो ₹1 में भी तो काम हो गया. तो I went there. पूरा hall was empty. And I was sitting there. And ये in my mind कि नहीं होगा तो I'll just sit here. I'll spend some time and go back. जब रिजल्ट आने वाले थे उस टाइम पीरियड में यू वेंट. Yes. ओके. I was sitting there for 30-35 minutes. फिर वो खत्म हो गया. And then I said I have to come back. But people are saying आप जाओ, मैं अभी मूवी शुरू होगा. I'm sitting there. रिजल्ट आया नहीं था. Just 5 minutes बाद आया. It came and I was like so thankful. I got a rank. Otherwise, I don't know. Maybe I wouldn't have returned home that day. That's what I was saying. Like, if my mother ever gets to hear this, like she'll beat. No, but it's really amazing क्योंकि I think it's a tactic. Yes. हर किसी का एक टैक्टिक होता है फेलियर को भी फेस करने का और सक्सेस को भी फेस करने का. बिकॉज यू ऑलरेडी फेस्ड वन फेलियर. Right. I would not say actually that was not a failure, that was just one step towards your success. तो आपने जब उसको फेस कर लिया then obviously it becomes difficult to face it second time. But I think it only made you stronger as a person also. Yes. Because being an IAS also, you will be facing a lot of such issues also. You will be meeting a lot of people who will be of different perspectives. Right. नहीं पता, जैसे आपने बोला पूरी दुनिया के लोग आपको प्यार नहीं कर सकते. There will be nasty people also. There will be good people also. There will be people who will be selfish to you. So I think all of this journey of yours will only make you stronger. And I think you might also feel the same. Yes. This time I think I was more like prepared कि जो भी होगा. As I said कि I'm going to give my 100%. I remember when I came out from the examination hall, mains के last दिन, my father was there to pick me up क्योंकि center दूर होता है. I live in Bhubaneswar and center was in a different city, Cuttack. Takes around 45 minutes to 1 hour to reach. My father was there to pick up. कार में बैठ के he said how did it go? I said कि इसके बाद आप मुझे और attempt देने मत बोलो. Because इससे ज़्यादा मैं और prepare कर भी नहीं सकती. This is the maximum I could give and I have given my 101%. So I was that satisfied with myself. इसके बाद नहीं हुआ तो it's UPSC's fault. It's not my fault. I was like that perspective. So yeah, maybe I did put in that effort. Nice. ठीक है. So coming back to the exam preparation, I just want to ask you and like focus here on mock papers. How important those are to the aspirants also who are going to write exam in the further years. So how important mock papers and previous year question papers are? Personally, these two, the previous year question papers and the mock papers, they have been the backbone of my preparation. And since I was preparing by myself, there was no other scope of discipline. तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछती है. एवरी एग्जामिनर, एवरी बोर्ड और एवरी कमीशन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग. एंड आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, एनालाइज करोगे, यू विल रियलाइज व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू राइट. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऑफन रिपीट होते हैं. आप वो देखोगे, बार बार देखोगे, यू विल रियलाइज बस वर्डिंग्स चेंज होते हैं बट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प यू. फॉर मॉक पेपर्स, मैंने बोला डिसिप्लिन के बारे में. इट विल गिव यू दैट डिसिप्लिन. यू सिट फॉर 2 hours. द थिंग अबाउट वी से अबाउट सिमुलेशन, जब आप कोई चीज बार बार करते हो then you get a habit of it. Right. आप हर दिन वो कर रहे हो, you won't feel that level of difficulty on the examination day. Which in my previous mains I don't remember writing any of the paper in like finishing the paper in 3 hours. And मैंने last में एक simulation भी किया था of writing endurance simulation जो मैं बोलती हूँ, writing 4 papers in 2 days back to back.
वो भी मैंने जब किया था आई स्टिल कुडंट फिनिश द पेपर्स इन 3 hours. 3 hours 30 minutes तब भी मुझे लगते थे. बट दिस टाइम अराउंड आई स्टार्टेड अर्ली विथ माई मॉक पेपर्स. तो आई हैड मतलब वो टाइम करके आई हैड कि मैं 3 hours में ही खत्म करूंगी वट एवर आई राइट. इफ आई एम स्किपिंग अ क्वेश्चन ऑल्सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग और वेयर डिड आई पुट इन मोर टाइम. That's why that must be the reason कि मैंने इस क्वेश्चन को डिवोट नहीं किया था टाइम. एंड ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है. आई डिडंट हैड कि हर क्वेश्चन को 7 minutes या 14 minutes देते हैं एज द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि 10 marks को आप इतना दो एंड 20 marks को ऐसा दो. आई हैड इन मी कि अगर ये इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन अगर रिपीटेड टाइप का हो तो यू हैव रेडीमेड कंटेंट. आप प्रिपेयर तो जरूर किए होंगे, तो दैट यू कैन लाइक फिनिश इन 4-5 minutes. So that these जो 2-3 minutes आप किसी क्वेश्चन में गेन कर रहे हो, put in that for a difficult question. उसमें आपको 8-9 minutes मिल जाएगा. This was my approach. Okay. So as you said, analysis is also very much important. So just for the aspirants, can you please tell us how much time you devoted for the analysis? Like आपने एक question paper दिया तो आप पूरा दिन लेते थे उसको analyze करने में, या only just 2 hours 3 hours, कितना टाइम आप उसको डिवोट करते? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने बार बार एनालाइज किया है, लाइक एवरी 10-15 days में, टू लाइक चेक ऑन योरसेल्फ, आर यू ऑन द राइट ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन, आर यू रियली इनटू द सिलेबस और यूपीएससी और यू गोइंग बियॉन्ड. ओके. वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाज ऑलवेज देयर, लाइक द होल 4 years इट वाज ऑलवेज देयर. फॉर मॉक पेपर्स जैसे कि प्रीलिम्स का हो गया, मैंने 2 hours में दिया था, तो आई टुक लाइक 3-4 hours टू एनालाइज इट एंड filter out important information. अगर आपको कोई information नहीं लगे and you feel कि this is what UPSC may ask, so I used to note them down in A4 sheets, एकदम छोटे छोटे notes in 3-4 words. You remember only what's required. Mains के लिए similarly, when मेरे लिए इसमें था analysis में, आप मेंस टेस्ट सीरीज देने के बाद यू विल गेट द सोल्यूशन कंटेंट, जो मॉडल आंसर्स होते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा. जैसे एथिक्स के लिए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं एंड इट्स नॉट वी शुड नॉट राइट वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स और वी शुड नॉट साउंड लाइक एन एथिकल थिंकर. उसमें आप अपनी आपको एग्जाम्पल्स कलेक्ट करनी है, एनेक्डोट्स कलेक्ट करनी है, उसको लिख के यू हैव टू एक्सप्लेन द पेपर. तो उसमें एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैंने एक मॉक पेपर दिया है, उसका सोल्यूशन कंटेंट में बैठ के 2-3 hours और समटाइम इट गोस अराउंड 4-5 hours अगर पेपर लंबा हुआ तो आई यूज टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, नोट देम डाउन इन A4 शीट्स. मैंने जो मेंस के लिए अपने थोड़े थोड़े नोट्स बनाए थे, उसमें जो भी टॉपिक या सब थीम था, उसमें आई यूज टू ऐड दीज एग्जाम्पल कंटेंट. नाइस. तो आपने कितने मॉक पेपर्स और कितने साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स तक करे थे? Since the syllabus got changed 2013 से I have analyzed all the questions. So you have attempted all question papers from 2013 till 2021? Prelims के लिए yes. बट मेंस के लिए एज आई सेड, आप जब आइडेंटिफाई करोगे ना सब थीम्स एंड ये, तो इजी हो जाता है फिर वो. आई थिंक मुझे तो लगता है कि हर साल यूपीएससी विल आस्क 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी सब थीम एंड 80% ऑफ द कंटेंट हर क्वेश्चन का सेम ही होगा. राइट. एंड मॉक टेस्ट पेपर आपने कितने दिए? मॉक टेस्ट पेपर प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 50-60 एंड वी गॉट मोर टाइम आल्सो. कोविड की वजह से एग्जाम डिले हुआ था, सो आई वोंट से कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया. एंड अटेम्प्ट 2 में आई गॉट लाइक 2 months फॉर इट, तो अराउंड 30-35 papers I covered. Full length test only I'm saying, subject wise नहीं थे. And mains के लिए पहले attempt में I wrote around a set of 8 tests, मतलब हर GS पेपर का एक. and ये सब मैंने एक भी like 3 hours में complete नहीं किया था. जो first set मैंने किया था, I took like 3-4 days to writing for 1 hour a day or something, answer writing जैसे करते हैं उस वैसे मैंने किया था. The second set I started writing sitting for 3 hours, but 3 hours में complete नहीं हुआ. I took like 4.5 hours. फिर मैंने एक सिमुलेशन वाला एक ले लिया था, फ्री वाला, जिसमें I didn't take evaluation. Okay. बस 2 timed वाला मैंने जो बोला था एग्जाम के जस्ट 1 week पहले, तो that I gave. So that will be 12 tests for GS. And sociology के लिए similarly जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, उसमें I didn't get the full length test, subject wise test थे.
एंड सिंस आई हैड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग, तो मैंने टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया. आई गेव अराउंड 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड 2 ही फुल लेंथ टेस्ट में कर पाई, मतलब 1 पर पेपर. बट दिस टाइम अराउंड सेकेंड अटेम्प्ट में अगेन GS के लिए आई गेव ऑल द 12 पेपर्स इन 3 आवर्स. मतलब पहले 2 सेट्स जो थे उसको आई यूज टू लाइक अटेम्प्ट इन, मतलब 3-4 डेज का गैप लेके एक बार 3 घंटे बैठ के लिख दिया. जो लास्ट सेट होता है दैट शुड बी जस्ट बिफोर द एग्जाम, 1 हफ्ते पहले आप 2 दिन बैठ के 4 पेपर खत्म करो. राइट. एंड सोशियोलॉजी के लिए अगेन इस बार मैंने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही दिया था. आई डिडंट गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. तो आई गेव अराउंड 8 टेस्ट. तो 6 टेस्ट मैंने इवेलुएट करवाए थे 3 आवर्स में जो बैठ के, एंड 2 टेस्ट अगेन एक दिन में 2 लिखना होता है सोशियोलॉजी में, वो मैंने फिर वैसे एक सिमुलेशन भी किया था. तो अगेन 8 टेस्ट फॉर सोशियोलॉजी. ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट मेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू, क्योंकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नहीं क्लियर हुआ था दैट वाज द इंटरव्यू पार्ट. तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्या थिंकिंग था जब मतलब आपका मेंस का एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया कि यू हैव क्लियर्ड एंड नाउ इट्स द इंटरव्यू? तो आपको ऐसा लगा कि इंटरव्यू इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज फर्स्ट में भी नहीं हुआ था, क्या पता इसमें नहीं हो, ऐसा कुछ थॉट आया था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्सनालिटी टेस्ट में एक नेगेटिविटी आ गई थी बिकॉज मतलब आप फिर वो आ जाती है कि वट एवर आई प्रिपेयर क्वेश्चंस बोर्ड मेंबर्स उसी से पूछेंगे विच आई डोंट नो. वो एक्चुअली हुआ था as if they had a set of questions for me कि ये पूछ के मतलब आंसर्स निकलना है if she knows it or not. तो वो वाली टेस्ट हो सकता है they wanted to gauge कि मतलब इस आंसर क्यों दिया something, but that was more of a knowledge test. I felt for myself, मेरी perspective ये थी. I got some back-to-back 3-4 factual questions from that board, and I couldn't answer. हम politely मना करते हैं, sir, I'm not aware of this topic, and I'll definitely read back or I'll go back and read on it, because it's expected कि you should be honest. मतलब आप guess मत करो, आपको पता नहीं है तो, and if you're guessing, you need to take permission. Sir was quite persistent कि नहीं आप आंसर बोलो. एंड वो एक नेगेटिव ये आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता. व्हेन आई हैड लाइक प्रिपेयर्ड फॉर, थोड़ा पैनिक भी कर देता है वो चीज, क्योंकि आप एक बंदे के सामने नहीं, एक पैनल के सामने बैठे हो एंड इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आंसरिंग टू वन पर्सन. देयर आर 4 more people who are going to judge you on that basis. बट एज एंड व्हेन इंटरव्यू कंटिन्यूड, वो खत्म हुआ, उसके एंड तक आई वाज मतलब देन दे मतलब पुट इन दैट एनवायरनमेंट कि हाँ सब ठीक जाएगा. द बोर्ड मेंबर्स वर स्माइलिंग, दे वर मतलब रेसिप्रोकेटिव, यस वेरी गुड, एंड ये सब बोल रहे थे. एंड तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ मे बी आई विल गेट एवरेज मार्क्स बिकॉज द बोर्ड वाज लाइक स्माइलिंग एंड हैप्पी. मुझे लगा मे बी दे वर सैटिस्फाइड और समथिंग, लेकिन मार्क्स बहुत कम आए थे इन 160s. तो दिस टाइम अराउंड आई हैड दिस इन माइंड कि मतलब कुछ भी प्रिपेयर करूं, क्वेश्चंस तो विल कम फ्रॉम व्हाटएवर दे विश टू लिसन फ्रॉम. राइट. तो फिर भी मतलब क्या करें, फिर आई जस्ट हैव टू गो एंड कॉन्फिडेंटली स्पीक. तो कुछ तो बोलना चाहिए, तो आई जस्ट स्टार्टेड रिवाइजिंग जो भी मेरा प्रीलिम्स का था, मेंस का था, थोड़ा थोड़ा. अगेन माय डायफ मैंने स्टेट का थोड़ा प्रिपेयर किया, मैंने बैकग्राउंड का किया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस. बट आई विल से कि पर्सनालिटी टेस्ट में देयर इज ऑलवेज अ हिंट ऑफ लक. आप कौन से बोर्ड में जाते हो, आपको वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से पूछते हैं, और इज इट लाइक प्रीलिम्स. हम पूरा प्रीलिम्स मोड में तो अभी नहीं जा सकते कि आप सब कुछ रट के जाओ. This time around, I'll say I was lucky on that front. कि questions were on expected lines. Like majority of the questions came from technology, my background, computer science, and women empowerment पे questions थे, MSMEs पे questions थे. Same day current affairs वाली topic भी बहुत important होती है personality test के. Same day Silicon Valley Bank fail हुई थी. Right. And it's like a sponsor for a lot many startups. तो वो question मुझे मिली थी. What do you see कि उसका effect क्या होगा इंडिया में? Has the Ministry of Finance done anything about it? ये एक बहुत अच्छा healthy conversation चल रहा था. And this time I didn't feel कि they had a particular set of questions in mind. मतलब the next question was based on what I had answered the previous question. So it felt like a discussion, a very intellectual discussion. बीच में I got a women majority panel. 3 मैडम थी and I was there. तो बीच में मैम ने ये भी acknowledge किया कि see we are discussing women in technology and you see the sex ratio in this room. वो एक बहुत boost भी मिला, which gives you more confidence कि आप next question और अच्छे से और
कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करते हो. तो एंड आई गॉट क्वाइट लाइक अराउंड 25 मार्क्स इम्प्रूवमेंट हुआ है शायद इंटरव्यू में. सो एंड आई एम सेटिस्फाइड विद. So, मतलब what are your tips to the aspirants then? Like if they're going for the interview, what they should do and what they shouldn't? पहले तो बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है. आई हैव दिस कि अगर वी डोंट हैव दैट इन आवर हैंड्स देन व्हाई बॉदर अबाउट इट. Right. बट जो आपके हाथ में है यू कांट स्किप इट फॉर व्हाट यू डोंट हैव इन योर हैंड्स. आई हैड दिस एंड मैं यही एडवाइस कर सकती हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग कि बोर्ड कैसा होगा, कौन पैनल मेंबर्स होंगे, कितना मार्क्स आएंगे, यू एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है आपको वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ ले. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये आप एंड आई ऑलवेज फील कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो सब बोलते हैं कि इट्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, 1 महीने में चेंज नहीं होती, 2 महीने में चेंज नहीं होती. आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस माइंडसेट. मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज विल मेक यू कॉन्फिडेंट. इफ यू हैव द कंटेंट इज किंग. इफ यू नो, इफ यू हैव थिंग्स टू स्पीक अबाउट देन यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली. अगर आपको पता है कि ये मैंने पढ़ा है और ये चीज सही है देन यू वोंट हैव द डाउट इन स्पीकिंग. तो आप इसीलिए मे बी UPSC has kept the personality test after prelims and means so that you already have that amount of knowledge. It's not the test of knowledge but आप उसको जो knowledge आपके पास है वो आप कितना confidently बोल पाते हो. Why did you answer this and not something else? These all things are tested. But that will also come when you have the knowledge. तो when you have done your prelims and mains preparation holistically, आपको एक natural knowledge वाली confidence आएगी कि मुझे पता है. I'm not a fool. I can talk to intellectual people. I can reply to what they ask. And I think that's what they are looking for also. Yes. They are not just looking for the knowledge. Well, that is obviously a part. Yes. But they're also looking ki how you handle Yes. to pressure, because obviously it's a very big position where you will be responsible for a lot of things, so you will be answerable also. So how you will manage that? Right. I think they also look at that, right? So मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है आपसे कि अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 के जो इंटरव्यू था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे हो कि ये तो मैंने पहले भी सुना है, मतलब बिकॉज फर्स्ट में भी पूछा था, सेकंड में भी पूछा, ऐसा कुछ होता है लाइक दे डेफिनेटली आस्क समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, एनी टॉपिक? एक तो जनरल होती है लाइक मतलब व्हाई एग्जैक्टली यू वांट टू डू दिस. मुझे पहले अटेम्प्ट में ये वाली क्वेश्चन नहीं थी बट हाँ देयर आर समथिंग एटलीस्ट एक क्वेश्चन दे विल डेफिनेटली आस्क ऑन योर स्टेट और योर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप अपब्रिंगिंग हुई. बिकॉज इट्स क्वाइट नेचुरल टू एक्सपेक्ट अगर आप कहीं रहते हो, if you're not knowing about it then it means कि you're not a curious person. Do you remember what was the question that was asked? पहले attempt में I got asked about hockey. Odisha was sponsoring the international hockey that year. So I got some technical questions on hockey as well. I'm not a very sports inclined person and I couldn't reply to that. This time I got Odisha पे we are a tribal dominated state. वो सारे issues हैं. Why is human development not reaching them? In fact chairman madam ने ही chairperson madam ने ही मुझे वो question पूछा था that why do you think development is not reaching there and what is the difference? There is a regional imbalance in Western Odisha and Eastern Odisha. Why are they there in Western Odisha and why is the administration mostly set up in the eastern side? Why is the government, is it that the government is not interested in looking at them or is there some problems that we are unable to reach out to them? एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था इस पे. So what I extract from your conversation right now is you need to know about your state. Yes. You need to also know about the subjects that you have studied also. I think they just, as you said, they asked you technical questions as well. Yes. Not just hockey but वैसे भी they ask you technical questions like because you are from the engineering background, so you need to know your domain right perfectly. Yes. मतलब इतना तो आना चाहिए कि आप आंसर कर पाओ चीजों को. एंड टेक्निकल क्वेश्चन पे आई लाइक टू मेंशन अक्सर पीपल मतलब एस्पिरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि डू आई हैव टू रिवाइज एवरीथिंग दैट आई हैव रेड इन द ग्रेजुएशन. Right. No, that is not required. जैसे कि if I am a computer science graduate, they won't expect कि I'll sit and write an algorithm there. But a basic knowledge is application is important. Correct. जैसे कि I got questions on security, information security, cyber security professionals. Why मतलब India is so advanced. We are outsourcing software professionals to USA. हमारी technology मतलब it's not like we have a weak human resource. Then why are we not able to save our own resources from cyber attacks? Right.
साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में कमी क्यों है? दिस वाज अ क्वेश्चन. फॉर दिस यू डोंट हैव टू लुक इनटू अ इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है या malware क्या होता है. My answer was कि this is a thing about I think accessibility and interest. जैसे कि मान लो कि एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन, आई जस्ट सेड दैट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने जो 4 साल ग्रेजुएशन की, आई सॉ दैट द सब्जेक्ट्स अवेलेबल ऑन द लाइक स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वाज लेस देन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दीज आर द कीवर्ड्स. मे बी वी आर नॉट फोकसिंग दैट ऑन द करिकुलम, so it doesn't mean कि we don't have the potential. If we train the youth in cybersecurity as well, we will get excellent talent as we are getting in AI and blockchain as well. So that was about the interview. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आया था, आपने मेरे को वैसे इंस्टेंस तो बता दिया, who like looked for your result? Was it you yourself? It was me myself first. And you were alone at that time? Yes. Or you were sitting with somebody and like no, looking I at was it? alone. I wanted my. Did you see the result in the movie theater though? Yes. And I was shivering when I searched for my name. Okay. Control F किया था on the PDF. Then एक तो फिर मैं फर्स्ट लाइन नो दिस कैन नॉट बी मी बिकॉज सी अगेन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, देयर माइट बी अनदर कस्तूरी, ऐसा नहीं कि आई एम द ओनली वन. फिर मैंने अपना फोन पे अपना एडमिट कार्ड चेक किया एंड इट वाज माय रोल नंबर. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ दिस इज ट्रू. एंड देन आई थॉट मे बी आई एम ड्रीमिंग. पहले आई स्माइल्ड फॉर माई सेल्फ, थोड़ी खुश हुई, आई केम आउट एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग. फिर मैंने कॉल करके बताया टू माय फादर. देन ही वाज शॉक्ड कि ये रो क्यों रही है. I said ना they were scared of that incident कि फिर से रोना धोना, इसको कैसे संभाला जाएगा. Did they assume for a moment कि yes. you might not have gotten it? My father assumed that okay. because I was crying. Then he was shocked. बोलो at least say something, otherwise how will I know? I just called him and I cried. Then I said कि हो गया UPSC and I got 67 rank and I was like murmuring kind, मतलब he couldn't hear me properly. And same ही loud कितने in Odia he said कितने rank आशी? I said 67. The vacancies, मतलब how many vacancies do you have this time? I think IAS हो जाएगा. I said yes. And I was crying. Are you mad? Why are you calling me and crying? You'll become an IAS officer and you'll cry. So it was just your dad? Your mom was? I went to meet him in his office. He was in office. Oh, okay. वहाँ पे again I entered smiling. Then suddenly people came up कि हमको मतलब ऐसे I like congratulate and all, उनके जो भी staff थे office में ना. Then वहाँ पे when I saw so many people, again all those emotions came in. Again I started crying. Then वो सब होता है ना जो मीडिया कॉल कर लेते इनिशियली, तो 1-2 इंटरव्यू मैंने रोते रोते ही दे दिया था वहाँ पे बैठ के. Then I came home. मतलब my mother knew by then. कॉल पे my father told her. एक होती है, if I can share, it's a very innocent moment. We are very fond of mangoes in Odisha, especially summer. तो दिन में हम 4-5 खा लेते हैं. तो बीच वाला जो होता है, it had the seed and all, उसमें थोड़ा पल्प कम होता है. So my mother told me कि अभी तो मैं I can't serve you this, you have become this big officer and all, I have to give you proper mango juice या shake. So again that was a very big thing for me. She said कि then again I started crying. So it took me a lot of time to process this, what's happening around. तो मतलब माहौल बहुत अच्छा ही था, लेकिन very divine feeling I'll say. But you were still unable to like believe it कि you actually got it. That's nice. So we have talked about mostly everything. This serious section has come over. ठीक है, अब हम बात नहीं करेंगे actually, we will play a game. So it will be rapid fire. You know it, कैसे खेलना है, and I'll be asking you questions. आपको बहुत जल्दी आंसर करना पड़ेगा. Are you ready for it? It is different from the UPSC interview, ठीक है? This is the Unacademy kind of a rapid fire. So it will be fun. It will be personal questions and it could be anything. So you ready? Oh, I'm not ready, but we can start. Chalo, super. I'll start with the questions then. If you had a superpower, what would that be?
1, 2, Superpower, 3. I can say I'll get like 5-10 minutes to do that. I'll ensure कि I'll tell all the teachers in the world कि don't complain about students because I got a lot of complaints. But when this I was is in not a school. superpower, no. This is just something that you can do right now also. Okay. Then should I think and say? You have just 5 seconds. Give me some time. No. Whatever comes in your mind, you have 5 seconds. 1, 2, 3, 4. I have to skip it now. I'm Okay. not getting anything. I'll skip it then. I'll go to another question. Okay. I'm getting something. You give me. Answer ही बोल दो. It's fine. है ना? I'll go to sleep on a book and I'll ensure कि all the information is in my head. This is also not a superpower. You get a knowledge. हाँ, मतलब I don't have to read that book. I'll sleep on the book Hmm. and it will magically go in my head. मतलब जादू की तरह. हाँ, जादू की तरह. Nice, ठीक है. Okay, your second question is, if you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? To everyone in this world, do you really do the hard work that you say to people? Are you being 100% honest to yourself after you are successful? Very deep question. Nice. Okay, I won't be answering that though. Next question. What is the most important object you own? I think a gift from my father. It's a pen. Nice. I think that's my lucky charm. Okay. What is something most people do easily but you find it very difficult? Doing my own like kapde dhona and cleaning. People say cooking is easy. I find it difficult to walk into the kitchen also. Okay, next question. If you could change one thing about your upbringing, what would it be? I'll ask my parents to encourage me to take some extracurricular activities as well. Okay, last question. What is something you learned in this year? I think I have become a believer now. Destiny and spirituality. So belief in, I don't subscribe to a particular god or religion, but yeah, there's a Advaita philosophy of one soul, that there is some supernatural thing that does drive, or it gives the stars to incline and give you your moment. Nice. With this very philosophical answer, we end this rapid fire. It was great to have you here, Kasturi. We have a token of appreciation here and a congratulatory gift also for you from the Unacademy team. So this is for you. Thank you so much. Hope you enjoy all of this. So thank you so much for coming at Chamomile Tea with Toppers, and that is the end of our episode here. Thank you everyone for watching this episode. I hope you learned a lot from Kasturi's journey. आप लोग भी अपने preparation में उनके mistakes को ध्यान रख के अच्छे से strategize करके आगे बढ़िएगा. Don't forget to like, comment congratulations to her, and subscribe to Chamomile Tea with Toppers. Let's crack it.